Beautiful good morning to class 12 biology students. Now I'm going to discuss the next topic, that is sexually transmitted diseases, which are also called STDs, जिनको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में STDs. These are also known as RTI, reproductive tract infections, and these are also known as venereal diseases. Venereal diseases, STDs, RTI and VD. These are the names. As the word indicates itself, it means those diseases which are transmitted by the sexual contact. These are known as sexually transmitted diseases, and these diseases are more common in the age of adolescence. It means between the age of 16 to 25. adolescence की एज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं. Basically, so many diseases are there which are come in the category of sexually transmitted diseases. But if we talk about the common symptoms of these diseases, अगर इस diseases के हम common symptom देखें तो these are itching, swelling, inflammation in genital tract. ये प्रॉब्लम हो जाती है genital tract में. Sometime fluid start to discharge from the genital tract. Pain is there. These are the common symptoms of these diseases. But because these organs are present, reproductive organs are present in the pelvic region, so basically these affect the pelvic portion of our body, and these are known as pelvic inflammatory diseases, जिनको कहते हैं हम pelvic inflammatory diseases, PID. बेसिकली अगर मैं यहाँ पर लेकर चलूँ बात को, इन डिसीजेज में अबॉर्शन भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है जेनाइटल ट्रैक्ट का. इसके अलावा दो इम्पॉर्टेंट वर्ड, इकोप्टिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है, इसके अलावा स्टिल बर्थ्स भी हो सकते हैं. अब हम इन दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज इकोप्टिक प्रेगनेंसी? Ectopic pregnancy means, as you all know, that the fertilization occur in the fallopian ampullary isthmic junction, and where the implantation occur, uterus. But in this case, the implantation occur in any other part than uterus. Uterus को छोड़कर किसी दूसरे part में implantation हो जाता है, like in fallopian tubule, where there is no particular space for the growth of the baby. जहाँ पर कोई particular space नहीं है baby के growth के लिए. It means when the baby do not get the proper space and it start to become grow, तो growth उसकी properly हो नहीं पाएगी, जिस reason में उस pelvic portion में pain होता है, कभी कभी vaginal bleeding भी शुरू हो जाती है, and these are not successful pregnancy. ये successful pregnancy नहीं होती. initial stage में ही इस baby को, इस embryo को abort कराना पड़ता है. These are the ectopic pregnancy. And stillbirth means when the baby die in the uterus. जब बेबी छठे सातवें महीने में भी किसी रीज़न की वजह से यूट्रस में ही डेथ हो जाए उसकी, दिस इज़ नोन एज stillbirth. So these are the some common symptoms which arises during these infection. लेकिन अगर हम कुछ स्पेसिफिक डिसीजेज़ के अगर नाम लें यहाँ पर, जो सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज़ की कैटेगरी में आती हैं, मैं 4-5 डिसीजेस के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी. सिफिलिस, गोनोरिया, HIV, उसके बाद में हेपेटाइटिस B, और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जेनाइटल हर्पीस.
इसके अलावा भी बहुत सारी डिसीजेज हैं, क्लेमाइडियसिस है, वेजाइनलिस है, बहुत सारी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन मैं कुछ कॉमन आपको यहाँ पर बता देती हूँ। अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर जो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर ना वो आसानी से क्यूरेबल हो जाते हैं अगर अर्ली स्टेज पर उनका डायग्नोसिस हो जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए। लेकिन इन 3 डिसऑर्डर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी खतरनाक डिसऑर्डर हैं, एक तरह से इनक्यूरेबल कह सकते हैं हम। कभी कभी तो फीमेल असिम्टोमेटिक रहती है बहुत लंबे टाइम तक, और वो जब अपने पार्टनर के सेक्सुअल कांटेक्ट में आती है तो वो डिसीज़ जो है वो वहाँ भी फैल सकती है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ HIV की, तो फ्लूइड से फैलने वाली बीमारी है। हेपेटाइटिस भी बॉडी के फ्लूइड से फैलने वाली बीमारी है, लेकिन और भी तरीके के हैं कि अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराते हो, अगर उसमें निडल सेम यूज़ करते हो, रेजर सेम यूज़ करते हो। जब हम HIV डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके फीटस में भी जा सकता है वो। तो इस तरह से बहुत सारे जो ये 3 डिसीज़ेज़ हैं इनक्यूरेबल हैं, इनका इतना आसानी से सिम्टम्स भी नहीं पता चलते हैं और क्यूर भी नहीं है। और मैं एक एक डिसीज़ के बारे में यहाँ पर आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर हम बात करें, कभी भी आपको क्वेश्चन मिले कि राइट एनी 5 और 3 सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, राइट देयर कॉजेटिव एजेंट एंड देयर सिम्टम ट्रीटमेंट, तो आप हमेशा एक चार्ट फॉर्म में इसका आंसर दो। सपोज जैसे मैंने यहाँ डिसीजेज लिख दी, उसके बाद एक कॉलम बनाओ आप कॉजेटिव एजेंट का कि भाई करता कौन है, कौन कॉजेटिव एजेंट है इस डिसीज़ का। तो मैं बताती जाऊँगी। सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट है ट्रेपोनेमा पैलिडम। पॉजिटिव जो एजेंट है वो कॉमनली आप याद रखना, बाकी सिम्टम्स कॉमन से ही होते हैं, वो मैं बताती जाऊंगी। अब सिम्टम सुनिए, इसके सिम्टम क्या होते हैं सिफिलिस के। जो जेनाइटल ट्रैक्ट है वहाँ पर अल्सर्स हो जाते हैं, सर्कुलर फॉर्म में अल्सर्स हो जाते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में। कभी कभी ये नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ गई, जब आपने इसको अच्छे से ट्रीट नहीं कराया, तो उस कंडीशन में ये पैरालिसिस भी कर सकता है। जब किसी को ये डिसऑर्डर होता है तो कॉमनली इसको पेनिसिलिन दी जाती है और ये माना जाता है कि एक इफ़ेक्टिव तरीका है कि प्राइमरी सेकेंडरी स्टेज अगर है इसकी सिफिलिस की तो वो ठीक हो सकता है। दूसरा आता है हमारा गोनोरिया। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है निजेरिया गोनोरी। ठीक, अब इसमें ये आप देखोगे कि मेल में अगर ये इसका इन्फेक्शन हुआ है, तो मेल में जब इन्फेक्शन होता है तो यूरेथ्रा से वाटरी डिस्चार्ज होता है। मतलब जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है मेल्स का, वहाँ पर डिस्चार्ज होगा, म्यूकसी डिस्चार्ज होगा। उसके साथ साथ जब यूरिनेशन होगा, उसका यूरिन जब वो पास आउट करेगा तो काफ़ी पेन क्रिएट होता है यूरिन पास आउट करने में, यूरिनेशन में। फीमेल्स की बात करें, अगर ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है गोनोरिया, तो फीमेल स्टेराइल भी हो सकती है, फैलोपियन ट्यूब्यूल ब्लॉक भी हो जाती हैं, है ना। तो इस तरीके से ये ऐसा डिसऑर्डर है, अगर अपने टर्शरी लेवल पे पहुंच जाए तो या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब कर देगा या फैलोपियन ट्यूब्यूल ब्लॉक कर देगा, जिससे क्या होगा, फीमेल में स्टेरिलिटी क्रिएट हो सकती है। और इसके लिए टेट्रासाइक्लिन दी जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कॉमन जो एंटीबायोटिक्स हैं वो यूज़ करी जाती हैं। HIV तो मुझे लगता है डिस्कस ही नहीं करना चाहिए क्योंकि हम पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। एड्स डिसीज़ का नाम है HIV, दैट इज़ अ रेट्रोवायरस विच कैन चेंज इट्स जेनेटिक मटीरियल, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और सीधा सीधा किसको इन्फेक्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को। इसीलिए वी लॉस्ट द पावर टू फाइट अगेंस्ट द डिसीजेज। हम डिसीजेज से लड़ने की जो हमारी पावर है वो ही क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक, तो कोई क्योर तो है नहीं, मैं कुछ मेडिसिन हैं, बस ये है कि वो लाइफ को आपको प्रोलॉन्ग कर सकती हैं, बट कैन नॉट प्रिवेंट टू योर डेथ, आपको डेथ से नहीं बचा सकती। अगर मैं नेक्स्ट पर आऊँ हेपेटाइटिस बी, तो कॉमन आप ध्यान रखना HBV वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस HBV वायरस है। अब होता क्या है, माइल्ड फीवर रहता है, थोड़ा थोड़ा फीवर रहता है, हेडेक रहता है, भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, डार्क कलर का यूरिन आता है, बॉबल जो मूवमेंट्स होती हैं स्टमक पेन में, बॉबल मूवमेंट्स होती हैं, आइज़ येलो हो जाती हैं, सीधा सीधा आपको अगर मालूम हो, एक तरह से पीरियड जॉन्डिस वाले जो सिम्टम्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए सीधा सीधा हेपेटाइटिस का क्या दिया जाता है, इंजेक्शन, वैक्सीन दिया जाता है ताकि आपके अंदर इम्यूनिटी क्रिएट हो जाए उस चीज़ के लिए। अब आते हैं हम अपने लास्ट डिसऑर्डर पर, दैट इज़ जेनाइटल हर्पीस। जो जेनाइटल हर्पीस है वो भी एक वायरल डिसऑर्डर है, इसमें चकते चकते से जेनाइटल ऑर्गन में ये समझिए कि एक तरह के स्कार्स लाइक हो जाते हैं, जो कि काफ़ी हद तक
फैल जाते हैं, ये है जेनाइटल हर्पीस की तरह जेनाइटल वार्ड्स भी होता है। तो बेसिकली जब आप इसको करो तो आप ध्यान रखना हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होता है इसका, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस बोलते हैं। पेनिस हो, वजाइना हो, यहाँ पर मेनली ये पार्ट्स इन्फेक्टेड होते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए एक मेन तरीका है कि जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो वो प्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, मतलब आप यहाँ क्या यूज़ करो, वहाँ पर बेरियर कंडम्स का यूज़ करो ताकि ये डिसीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ना हो। ये तो बात हो गई हमारी डिसीजेस की। अब अगर किसी पर्सन को बचना है इनसे, क्योंकि हमें मालूम है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो क्या क्या करना पड़ेगा, सीधी सीधी कहानी है। प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो वो प्रोटेक्टेड हो, इट मीन्स द यूज़ ऑफ कंडोम्स, तो वहाँ पर कंडोम्स का यूज़ हो। उसके अलावा ये भी कह सकते हैं हम रेगुलर चेकअप ऑफ पीआईडी, रेगुलर चेकअप हो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ का, ये भी एक तरीका है। उसके अलावा जो इंटरकोर्स है वो मल्टीपल पार्टनर, बहुत सारे लोगों के साथ या फिर अननोन पार्टनर के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। अगर हम मल्टीपल पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते हैं, अननोन पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि जो सेक्सुअल डिसीज़ उसको है वो हमें भी हो सकती है। इसके अलावा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलने वाली हूँ, जब इस तरह के हमें डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं तो हमारा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हेजिटेशन। इट मीन्स वी डोंट वांट टू टेल अबाउट दीज सिम्टम्स दैट व्हाट आर दीज, हमें शर्म आती है इन सारी चीज़ों को बताने के लिए। सो इफ़ एनी ऑफ यू हैव दीज टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स, अगर किसी को भी इस तरह के डिसऑर्डर होते हैं तो विदाउट हेजिटेशन यू विल टेल योर प्रॉब्लम टू द डॉक्टर और टू द नर्स कंसर्न पर्सन, बाय विच इट कैन बी ट्रीटेड प्रीवियसली इट बिकम डेंजरस होने से पहले ही आपको बचा लिया जाए। इसीलिए ये सारी चीज़ें शेयर करना विदाउट एनी एम्बेरसमेंट ज़रूरी है, ताकि प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर डायग्नोसिस हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। ठीक, अब मैं इसके अलावा एक छोटे 2 टॉपिक के बारे में और आपको यहाँ पर बताऊँगी। एक है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। अब है क्या है बेटा, ये देखो, क्योंकि लिखना आप मुझे वर्बली सुन के भी आप नोट्स बना सकते हो, तो इतना ज़्यादा वो नहीं है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वर्ड से पता चल रहा है मेडिकल टर्मिनेशन, इट मीन्स एंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी। एक तरह से एक वॉलेंट्री अबॉर्शन है, ये इंटेंशनल अबॉर्शन है। अब क्यों कराया जाता है अबॉर्शन? हमारी गवर्नमेंट ने इसको 1971 में लीगल किया। लीगल किस लिए किया कि अगर कोई अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया है, या कोई आपका जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो फेल हो गया है, या कोई रेप केस है, या अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा तो उससे मदर को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बेबी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों को, या कोई डिसऑर्डर है बेबी में और प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं हम, तो इस केस में जो गवर्नमेंट है वो लीगल करती है कि अबॉर्ट कराया जा सकता है बेबी। अब इसके लिए लीगलिटी के साथ कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स भी रखे कि इसका जो है वो मिसयूज़ ना किया जाए। मिसयूज़ से मतलब आप समझ रहे होंगे, बहुत कॉमन टॉपिक है नाउअडेज, बहुत चलता है, दैट इज़ फीमेल फीटिसाइड। अब होता क्या है, इससे रिलेटेड हमारे पास एक टर्म है बेटा, आप ध्यान रखना, एमनियोसेंटेंसिस। अब सबको पता होगा कि जो बेबी है वो एक फ्लूइड में पड़ा होता है, जब मदर की यूट्रस में होता है, उसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो जब भी कोई इस तरह का डिसऑर्डर या फिर कोई क्रोमोसोमल अरेंजमेंट पता करना होता है, तो जो बेबी का फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड, उससे थोड़ा सा फ्लूइड लिया जाता है बिना फीटस को कोई हार्म पहुंचाए, और उसके क्रोमोसोमल अरेंजमेंट से पता करा जाता है कि कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, मेल है या फीमेल है। चलो डिसऑर्डर की बात तक तो ठीक है कि वो लीगल है कि डॉक्टर ने, गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है कि अगर कोई डिसऑर्डर है मदर और बेबी में या दोनों में, तो अबॉर्ट कराया जा सकता है। लेकिन आजकल लोग इसी मेथड को किसके लिए यूज़ करते हैं? टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी, एंड इफ द बेबी इज़ फाउंड फीमेल देन इट इज़ किल्ड इन द यूट्रस, तभी वहाँ पे उसको अबॉर्ट कराया जाता है। तो इट इज़ इलीगल। गवर्नमेंट ने सख्त हिदायत दी कि इसको इलीगली ना यूज़ किया जाए, जिस पर्पज़ के लिए इसको बनाया गया है उसी के लिए यूज़ किया जाए। लेकिन फिर भी बहुत सारे अनक्वालिफाइड क्वैक्स हैं, नर्सेज होती हैं, कुछ डॉक्टर पैसे के लिए ये सारे काम करते हैं, जो कि अपने आप में बहुत गलत है। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि मेल फीमेल का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ताकि कोई कंट्री ग्रोथ करे, डेवलपमेंट करे। अब मैं उसके बारे में बता रही थी, MTP के बारे में आपको।
तो ये सारे रूल बना के अगर अब एमटीपी कब कराई जा सकती है, स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स होते हैं, इट मीन्स ट्राइमेस्टर में एमटीपी कराई जा सकती है, हो जाती है बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन ट्राइमेस्टर खत्म होने के बाद 3 महीने होने के बाद इट बिकम टू मच रिस्की फॉर द मदर एज वेल एज टू द बेबी, दोनों के लिए बहुत रिस्की हो सकती है, किसी की भी लाइफ को खतरा हो सकता है, लीथल हो सकती है किसी की लाइफ के लिए। तो इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करा लेनी चाहिए ताकि जो भी प्रॉब्लम है उससे हम गेट रेड हो सके, छुटकारा पा सके। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि भाई 4th मंथ में या 5th मंथ में करा लेते हैं, तो ऐसे लोगों को स्पेशल काउंसलिंग की, मेडिकल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें ताकि उन्हीं के फैमिली की किसी फीमेल को या फिर उसके बेबी को कोई हार्म हो। So now we have completed 3 topics today: reproductive transmitted diseases, reproductive transmitted diseases, and another one is amniocentesis, and third one is medical termination of pregnancy. Okay, next time I am going to discuss very important topic, ARTS, artificial reproductive technologies. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आपको बोर्ड में देखने को जरूर मिल जाएगा। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ ब्यूटीफुल डे।